सो इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ m इज चोजन इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन m स्क्वायर प्लस 1x² माइनस 3x प्लस m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0. लेट मी फर्स्ट राइट डाउन दिस इक्वेशन. m स्क्वायर प्लस 1x² माइनस 3x प्लस m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 such that the sum of its roots is greatest than the absolute difference of the cubes of its roots. Let us take the roots as alpha and the second root as beta. So if you take the summation of the roots alpha plus beta, that is 3 by n square plus 1 minus b by a. So it is given that the sum of its root is greatest. Here it is given such that the sum of its roots is greatest. So we need to maximize this maximum. So in order to be maximum, the denominator has to be minimum. So when will be m square plus 1 minimum, then m equals to 0. That time n square plus 1 will be 1. So now coming to the product of the roots, product of roots equals to alpha beta c by a. So m square plus 1 whole square by n square plus 1. If we put m equals to 0, we get alpha beta equals to 1. So we have found alpha plus beta equals to 3 and alpha beta equals to 1. Now we need to find out, it is asked, we have to find out the absolute difference of the cubes of its roots. So we need alpha cube minus beta cube. We need to find out this one. So we can write it as alpha minus beta, alpha square plus alpha beta plus beta square. So we will put the exact values. Now alpha minus beta, we can write it as alpha plus beta and alpha plus beta minus 4 alpha beta, and we are putting it inside the root because alpha minus beta whole square is this. And the second part is alpha square plus alpha beta plus beta square. So putting the values over here, alpha beta whole square will be 3 square and minus 4 inside root, and here it is alpha plus beta whole square minus alpha beta. So this is 9 minus 4 root 5, and here it is 9 minus 1. So basically the correct answer will be 8 root 5. If you look at the options, 8 root 5 is in option B. So option B is the right answer to this question. So इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है if alpha and beta are the roots of the equation x square minus 2x plus 2 equals to 0, then the least value of n for which alpha by beta to the power n equals to 1. तो इक्वेशन हमें दिया हुआ है x square minus 2x plus 2 equals to 0. मैं इसका ऐसे लिख रहा हूँ x square minus 2x plus 1 equals to 0. ये हमारा आ जाएगा x minus 1 whole square equals to minus 1. और माइनस 1 क्या होता है, आई स्क्वायर होता है. तो बेसिकली x माइनस 1 हमारा आ जाएगा प्लस माइनस आई. सो रूट्स की बात करें तो x हमारा आ जाएगा i प्लस 1, नहीं तो आ जाएगा माइनस आई प्लस 1. लेट अस असाइन दिस रूट एज अल्फ़ा एंड दिस रूट एज बीटा. हमें अल्फ़ा बाई बीटा पूछा है. अल्फ़ा बाई बीटा दैट इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस आई प्लस 1 एंड टू दी पावर एन था तो दोनों में टू दी पावर एन कर देते हैं. ये हमारा आ जाएगा आई प्लस 1 होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर. हमने सिर्फ रैशनलाइज कर दिया और ऊपर तो नहीं है पूरा. रैशनलाइज कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा आई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2i, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 टू दी पावर एन. यहाँ पे आई स्क्वायर और 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे. आई स्क्वायर और 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि आई स्क्वायर माइनस 1 होता है. सो 2i बाई 2 टू दी पावर एन. तो 2 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आई टू दी पावर एन. और क्वेश्चन अनुसार आई टू दी पावर एन इक्वल्स टू 1. इसके लिए हमें एन का लीस्ट वैल्यू चाहिए एंड वी नो दैट आई टू दी पावर 4 इक्वल्स टू 1. सो 4 इज द लीस्ट वैल्यू. 4 इज द लीस्ट वैल्यू, देयरफॉर एन इक्वल्स टू 4. और ऑप्शन में देखेंगे तो येस ऑप्शन सी 4 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. So in this question, the number of integral values of m for which the equation 1 plus m square x square minus 2 1 plus 3mx plus 1 plus 8m equals to 0 has no real root. तो हमें बोल रहे हैं कि given quadratic has no real roots.
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डी इज़ लेस देन 0 एंड डी इज़ व्हाट? डी इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम इसको यूज़ करके लिख देंगे। डी क्या आ जाएगा हमारे केस में? 4 टाइम्स 1 प्लस 3m होल स्क्वायर, बी स्क्वायर ये वाला पार्ट आ गया, माइनस 4 टाइम्स 1 प्लस m स्क्वायर 1 प्लस 8m इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करके 1 प्लस 9m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 1 माइनस 8m माइनस m स्क्वायर माइनस 8m क्यूब इज़ लेस देन 0। बचेगा क्या? बचेगा 8m क्यूब माइनस 8m स्क्वायर प्लस 2m इज़ ग्रेटर देन 0। मैंने नेगेटिव पार्ट को अलग साइड ले जाके इंटरचेंज कर दिया साइन को, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा? 2m माइनस 1 होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0। सो यहाँ से आ जाएगा m इज़ ग्रेटर देन 0 बिकॉज m इक्वल्स टू हाफ दूसरे में आ रहा है, तो कि नहीं है। तो m ग्रेटर देन 0 मतलब इसके लिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकता है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस ऑप्शन बी में है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। In this question, it is given that if lambda be the ratio of the roots of the quadratic equation in x 3m square x square plus m minus 4x plus 2 equals to 0, then the least value of m for which lambda plus 1 by lambda equals to 1. So it is given that lambda is equals to ratio of the roots and let the roots be alpha and beta. So alpha by beta is lambda. It is given in the question. Now it is given that lambda plus 1 by lambda has to be equals to 1. So basically alpha by beta plus beta by alpha equals to 1. And the equation was equation 3n square x square plus n m minus 4x plus 2 equals to 0. The roots are alpha and beta. From this equation, we are getting that sum of roots alpha plus beta equals to minus m minus 4 by 3m square. This is alpha plus beta. And if we take the product, okay, we can also cancel m and write m minus 4 by 3m, and this is in negative. Okay, and product of roots alpha beta, that will be 2 by 3m square. So you've got summation of roots, product of roots. So now alpha square plus beta square equals to alpha beta. So alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta equals to alpha beta. Now alpha plus beta whole square minus 3 alpha beta equals to 0. Now I'm putting values as m minus 4 whole square by 9m square for alpha plus beta whole square, and minus 3 times alpha beta is 2 by 3m square equals to 0. And 3 gets cancelled. M minus 4 whole square equals to minus 18 equals to 0. What I have done is m square is always positive, so I have cancelled out m square. Okay. So what it turns it, m minus 4 equals to root 18, and it will be plus minus. This turns out to be plus minus 3 root 2. So m is 4 plus minus 3 root 2. Now m has to be positive. And wait, let me see. Least value of m. We need the least value. So obviously we will take m least value equals to 4 minus 3 root 2, not the positive one. Both are positive in fact. So if you see the options, option number C, 4 minus 3 root 2, this is the right answer to this question. So इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है इफ़ वन रियल रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 81x स्क्वायर प्लस kx प्लस 256 इक्वल्स टू 0 इज क्यूब ऑफ द अदर रूट, देन अ वैल्यू। तो इक्वेशन हमें दिया है 81x स्क्वायर प्लस kx प्लस 256 इक्वल्स टू 0। एक रूट मैं अल्फ़ा ले लेता हूँ, तो दूसरा रूट आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब, बिकॉज इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज़ क्यूब ऑफ द अदर रूट। एक रूट दूसरा का क्यूब है, तो हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स which is alpha to the power 4, it is 256 by 81. अल्फ़ा क्या आ जाएगा? अल्फ़ा आ जाएगा 4 by 3. Now sum of roots
इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस अल्फा एंड दिस इज माइनस के बाई 81 माइनस बी बाई, अच्छा प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है सी बाई ए एंड सम होता है माइनस बी बाई ए. सो आई हैव यूज दिस. सो अल्फा क्यूब इज 4/3 होल क्यूब प्लस अल्फा इज 4/3. This is minus k by 81. So it is 64 times 64 by 27 plus 4/3 equals to minus k by 81. I am doing 3 over here and 27 over here. So minus k turns out to be 64 into 3 plus 4 into 27. 192 and 108. So k turns out to be minus 300. Looking into the options, option D is minus 300. So D is the correct answer of this question. So this question में हमें बोल रहा है कि the value of lambda such that the sum of the squares of the roots of the quadratic equation. The quadratic equation हमें जो दिया है वो है x square plus 3 minus lambda x plus 2 equals to lambda. तो इसको हम अपने तरीके से लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस लैम्डा एक्स प्लस 2 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें एक चीज़ पता है, सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू सी बाई ए होता है. ठीक है, ये किसके लिए होता है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो इक्वल्स टू 0, तब ये वैलिड होता है. सो हमें बोला है कि इसका एक रूट अल्फ़ा है और दूसरा रूट मैं बीटा मान लेता हूँ. ठीक है, नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू लैम्डा माइनस 3 माइनस बी बाई एंड प्रोडक्ट क्या जाएगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 2 माइनस लैम्डा. ना हमें एक चीज़ पता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हम टर्म अगर लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यूजिंग दिस 2 हमें अगर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लाना है तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा कर देंगे. अब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये हमारा आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा. इसमें पहले पूरा लिख देता हूँ. अल्फ़ा प्लस बीटा वॉज लैम्डा माइनस 3 so that is whole square minus 2 times alpha beta was 2 minus lambda. इसको मैं अगर एक्सपैंड करके लिख दूँ तो आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 9 माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा. ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 5. अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको मैक्सिमाइज़ करना चाहता हूँ तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा तो है ही, और मैं 4 और 1 को अलग से लिख रहा हूँ. क्यों, क्योंकि ये जो टर्म मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो मेरा लैम्डा माइनस 2 होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1. सम ऑफ द स्क्वायर्स मीन्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये मैक्सिमम नहीं सॉरी मिनिमम बनाना है. मिनिमम अगर बनाना है, इफ़ यू वांट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिनिमम देन लैम्डा को 2 के बराबर होना है. लैम्डा 2 हो जाएगा तो मिनिमम वैल्यू 1 आ जाएगा. सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा हैज़ टू बी 2, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ 2. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल नंबर्स. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें दिया है 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस अल्फा इक्वल्स टू 0. दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया है. हमें एक चीज़ पता है, द इक्वेशन का रूट्स होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a. नाउ एक्स अगर रैशनल होना है, हमें अगर रैशनल रूट्स चाहिए रैशनल, तो ऑब्वियस सी बात है कि रूट डी हैज़ टू बी डी, रूट डी नहीं सिर्फ डी हैज़ टू बी परफेक्ट स्क्वायर, राइट. परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा डी, तो मेरा रूट जो है एक्स होगा वो रैशनल हो जाएगा एंड डी इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो हमें सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, तो पहले डी निकाल लेते हैं. डी इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें हो जाएगा माइनस 11 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फ़ा टाइम्स 6 आ जाएगा 121 माइनस 24 अल्फ़ा. तो डी में एक एक करके हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो डी अल्फ़ा मेरा आ जाएगा 121 माइनस 24 अल्फ़ा. तो डी 1 करते हैं, डी 1 हो जाएगा 121 माइनस 24 97. ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो पर नॉट परफेक्ट स्क्वायर.
अब D2 करते हैं, D2 आ जाएगा 121 माइनस 24 इंटू 2 48, ये हमारा आ जाएगा 73 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, D3 करते हैं, D3 करेंगे 121 माइनस 24 इंटू 3 72, 121 माइनस 72 क्या होता है 49 होता है, 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है, सो यस दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर। और देखते हैं D4 121 माइनस 96, ये कितना आता है, ये हमारा 25 आ जाएगा, सो 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। D5 करते हैं, D5 आ जाएगा 121 माइनस, ये हमारा आ जाएगा 1, एक परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है। D6 121 माइनस 624 होता है, और 6 टोटल 14, मतलब ये तो नेगेटिव आ जाएगा। तो इससे अगर बढ़ते जाएंगे D7 D8 करते जाएंगे तो हमेशा नेगेटिव आएगा, तो इसके लिए सब इमेजिनरी आ जाएगा। तो हमें फॉर अल्फ़ा इक्वल्स टू 3 4 5 D इज़ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अगर D परफेक्ट स्क्वायर है इसका मतलब X इज़ रैशनल। कितना वैल्यूज़ है टोटल, हमारे पास 3 ऐसे वैल्यूज़ है जिसके लिए X हमारा रैशनल है। सो ऑप्शन नंबर D3 is the right answer to this question. So in this question we're given let alpha and beta be the two roots of the quadratic equation x square plus 2x plus 2 equals to 0. तो हमारा जो quadratic equation है x square plus 2x plus 2 equals to 0. The roots are alpha and the second root is beta. So हमें basically alpha to the power 15 plus beta to the power 15 चाहिए. I can write this equation as x square plus 2x plus 1 equals to 0. Basically x plus 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू -1 आ जाएगा, तो x प्लस 1 बेसिकली आ जाएगा प्लस माइनस आई, x इज़ -1 प्लस माइनस आई। हम लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि अल्फ़ा जो रूट है वो हमारा -1 प्लस आई है, और हमारा बीटा जो रूट आएगा बीटा दैट इज़ -1 माइनस आई। अब हम काम करते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर निकालते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा -1 प्लस आई होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i, आई स्क्वायर और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा -2i। सिमिलरली बीटा स्क्वायर करते हैं, बीटा स्क्वायर आ जाएगा -1 माइनस आई होल स्क्वायर 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, आई स्क्वायर 1 कैंसिल आउट हो जाएगा बचेगा 2i, बीटा स्क्वायर 2i आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर -2i आ जाएगा। अब हमें अल्फ़ा 15 प्लस बीटा 15 चाहिए, राइट। तो ये हम लिख सकते हैं ऐसे इक्वल्स टू अल्फ़ा टू द पावर 14 इंटू अल्फ़ा, और सिमिलरली बीटा के लिए भी हम ऐसे ही लिखेंगे बीटा टू द पावर 14 इंटू बीटा। अब अल्फ़ा स्क्वायर 7 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर 7 इंटू बीटा। अल्फ़ा स्क्वायर तो हमने पहले निकाल लिया था जो कि था हमारा -2i, तो टू द पावर 7 करेंगे तो -2 टू द पावर 7 आई टू द पावर 7, और अल्फ़ा के लिए -1 प्लस आई प्लस बीटा स्क्वायर के लिए 2i टू द पावर 7 होगा, सो 2i टू द पावर 7 इंटू बीटा क्या था, बीटा था -1 माइनस आई, बेसिकली आ जाएगा माइनस, तो माइनस था -2 टू द पावर 7 इंटू i7 -1 प्लस आई -2 टू द पावर 7 i7 1 प्लस आई, सो -2 टू द पावर 7 i7 कॉमन -1 प्लस आई प्लस 1 प्लस आई, तो यहाँ से -1 और 1 फिर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा यहाँ से भी 2i, तो यहाँ से -128, अच्छा i7 और एक i, तो यहाँ से तो i8 हो जाएगा, i8 और एक 2 भी आएगा, सो -256 इंटू i8 इज़ 1, i4 इज होल स्क्वायर हो जाएगा। सो अल्फ़ा टू द पावर 15, बेसिकली आंसर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा टू द पावर 15 प्लस बीटा टू द पावर 15 इक्वल्स टू -256। ऑप्शन में लिखते हैं, ऑप्शन में -256 इज ऑप्शन नंबर सी, सो सी इज़ द राइट ऑप्शन। So here in this question we said that s equals to x belongs to R, x greater than equals to 0, और एक इक्वेशन दिया है, हमें बताना है एस एम्प्टी सेट है या 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट, कितना एलिमेंट्स है वो हमें देखना है। हमारे पास जो इक्वेशन दिया है आई एम राइटिंग इट डाउन, 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ रूट एक्स -3 मॉड प्लस रूट एक्स -6 प्लस 6 इक्वल्स टू 0।
अब मैं काम करता हूँ, जो रूट एक्स है, लेट रूट एक्स इक्वल्स टू टी. नाउ सॉल्विंग दिस, 2 टाइम्स मॉड टी माइनस 3 प्लस टी माइनस 6 प्लस 6 इक्वल्स टू 0. जब भी हमारे पास मॉडुलस का क्वेश्चन होता है तो हमें ब्रेक कर लेना चाहिए, डिफरेंट केसेस में ब्रेक करना चाहिए. तो फॉर दिस क्वेश्चन लेट अस टेक केस 1 एज टी इज़ लेस देन 3. जब टी लेस देन 3 हो तब क्या हो जाएगा, तब आ जाएगा माइनस 2t प्लस 6 प्लस टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 6 इक्वल्स टू 0. यहाँ से जो क्वाड्रेटिक हमारे पास बनेगा टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 12 इक्वल्स टू 0. अब एक चीज़ मैंने पहले लिख दिया केस 1 में कि t इज़ लेस देन 3, और इस जो क्वाड्रेटिक है इससे हमारा जो दो सोल्यूशन आ जाएगा, सोल्यूशन क्या आ जाएगा, t इक्वल्स टू 2 और 6. बट मैंने जो लिया है t इज़ लेस देन 3, 6 सेटिस्फाई नहीं करेगा बट 2 करेगा. सो t इक्वल्स टू 2 एक सोल्यूशन है इसमें. t तो हमें नहीं चाहिए, हमें x चाहिए, तो रूट एक्स इक्वल्स टू 2 और x बराबर 4 आ जाएगा. अब नेक्स्ट केस की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट केस में कौन सा लूँगा, मैं केस 2 केस 2 जो होगा मैं इसको लूँगा कि t इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3. इस केस के लिए हमें क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स t माइनस 6 प्लस टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 6 इक्वल्स टू 0. इससे जो क्वाड्रेटिक बनेगा वो बनेगा टी स्क्वायर माइनस 4t इक्वल्स टू 0. तो डेफिनेटली इससे दो सोल्यूशन हमें दिख रहा है, t इक्वल्स टू 4 और 0. बट हमें बोला है कि t इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो t इक्वल्स टू 4 ही लेना है, 0 तो नहीं लेना. सो रूट एक्स इक्वल्स टू 4 हमें x चाहिए, तो x इक्वल्स टू 16. और दो सोल्यूशंस हमें मिले. केस 1 से हमें मिला x इक्वल्स टू देयरफॉर x इक्वल्स टू 4, और केस 2 से हमें मिला 16. तो दो सोल्यूशन हमें मिले. ऑप्शन में देखेंगे कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, ऑप्शन सी में, तो सी इज़ द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है इफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स और द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0. तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0. जब हम इसका रूट्स निकालने की कोशिश करेंगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट में बाई 2a, तो हमें मिलेगा x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 3 बाई 2. दिया जाएगा 1 प्लस माइनस आई रूट 3 बाई 2. बेसिकली माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस माइनस आई रूट 3 बाई 2. हम रूट्स को लिख सकते हैं x इक्वल्स टू माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर. क्यों, क्योंकि हमें पता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, एंड ओमेगा इज़ नथिंग बट माइनस 1 प्लस आई रूट 3 बाई 2, एंड ओमेगा स्क्वायर इज़ माइनस 1 माइनस आई रूट 3 बाई 2. दीज आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. तो हम मान लेते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा और बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर. हम आगे लिखते हैं, हमें चाहिए अल्फ़ा टू दी पावर 101 प्लस बीटा टू दी पावर 107. ये हमसे पूछा है, तो हम पुट करेंगे वैल्यूज़. अल्फ़ा मैंने लिया है माइनस ओमेगा, सो माइनस ओमेगा टू दी पावर 101 एंड बीटा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर 107. अब दोनों ऑड पावर से, तो माइनस मैं बाहर लिख सकता हूँ दोनों के, तो माइनस कॉमन ले लूँगा, तो ओमेगा टू दी पावर 101 प्लस ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर 107 ये आ जाएगा ना. इसको हम कंटिन्यू करते हैं. माइनस ऑफ ओमेगा टू दी पावर 99 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू दी पावर 214 आ जाएगा. अब एक चीज़ देखो, हमें पता है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होगा, तो ओमेगा टू दी पावर 3n, यहाँ पे n एक इंटीजर होगा तो वो 1 आ जाएगा. ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर भी 3n होगा तो 1 ही आ जाएगा, सेम ही है. तो इस चीज़ के लिए मैंने 99 में ब्रेक किया था. आगे बढ़ाते हैं. ओमेगा टू दी पावर 99 तो हमारा 1 आ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर बचेगा, एंड ओमेगा टू दी पावर 214, इसको क्या लिखते हैं, ओमेगा 213 इंटू ओमेगा. ठीक है, तो 213 भी मल्टीपल ऑफ 3 है, सो माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा. एक चीज़ हमको पता है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये हमको पता है. तो बेसिकली ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल्स टू माइनस 1. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 1, सो 1 इज़ द करेक्ट आंसर. ऑप्शन में लिखते हैं, ऑप्शन में 1 इज़ ऑप्शन नंबर सी. सी इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन.